Hello, all. So, in the previous class, we were discussing about regression in deep learning, and we have made a simple architecture where California housing data set is considered for prediction. And this is how we proceeded. That means TensorFlow is our base library for the deep learning problem solving. Okay, it's a base framework. Then sequential model we have taken. Then we have added a layer, that is dense layer, and California housing data I have taken, dividing data into train test split. That also I made you clear in the previous class, that we divide data into training and the testing. With training we are going to train our model, and with testing we are going to test it once our model got trained. I also took standard scaler because, as I said, in deep learning there is a requirement. It expects that user should give a scaled data into the model for training. Every model is having some assumptions that what kind of data it expect. Okay, in machine learning, whatever be the models we are using in supervised or unsupervised, they do expect a kind of data. So we follow up a pre-processing, and standard scaler is one of the technique present in it. Okay, here I took housing data that is already available in sklearn. Okay, then from housing data I separated features and the target. Okay, here I printed California data completely. That means what are the elements which are present in this data set. So it printed the values also, target frame, target name, feature name, everything it printed. Specifically, I want to print what are the feature names. Okay, so with California dot feature names, we printed its features, and with target names, I printed its target. That is what we have to achieve. And then I splitted the data with the help of train test split. And here I mentioned that I need 20% of the testing data, and 80% of the data will be used for the training. Then I scaled the training features. Okay, that means X train, and also I scaled X test to 2. Okay, so as I told that a deep learning model expect such kind of activity, so we have to scale it. I also explained you what is fit underscore transform. Fit underscore transform means you have to find the mean and the standard deviation of this data, and then you have to apply it for the scaling purpose. The formula for standard scalar I have already taught you in the previous class. Okay, so you can follow from that. Xtrain and Xtest are scaled. Then here I made my model that is sequential. Okay, right now it's just a title or a name given to the infrastructure. You have to build up the infrastructure by adding layers into it. So I added a dense layer with 64 neurons, following up with the activation function relu. Input shape, I also told yesterday that input shape here defines that how many features are
going to be there in your input layer. Okay, so xtrain dot shape 1. 1 means the number of columns or the number of features. xtrain dot shape 0. 0 मतलब होता है रो. ओके, और 1 मतलब होता है कॉलम. ओके, तो वी हैव टू कंसिडर द कॉलम्स, यानी फीचर नेम्स मुझे लेना है, वही मेरे इनपुट होंगे. दे विल बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट. तो ये मेरी इनपुट लेयर है. एंड देन I added one more dense layer that is again having 64 neurons with activation function rel. And then I added one more dense layer. ये मेरी आखिरी layer है, last, that will be the output layer. And here one neuron is present, and I gave activation function as linear. Okay, so because we are doing the regression problem, in that particular case, linear function is fine at the output layer. Okay, then I configured the model architecture which I have built. Okay, so if I execute this code again, importing the library, taking the data, printing the data, printing the feature names, printing the target name, then splitting the data, scaling the data, then building up the model. Okay, and of course, model will be sequential in nature, as I explained previously also. Okay, there is nothing like parallel. However, you can build architecture where there's a possibility that you can tap up the connections in different other ways too. Fine. So this is your model, and we can print the summary of the model. Okay, here is the summary of the model. You very well know from this summary, as I explained in the previous class, that how we got these parameter values. Okay, so this is first dense layer, this is second dense layer, this is the third dense layer. These are the number of neurons. None means the batch size, and these are the parameter names. How many number of parameters are there? All are trainable. Total number of parameters are 4801. So if you make a simple architecture also, you can see that still I am having 4801 parameters. In a small architecture only I'm having this much parameters. So can you imagine when you do work on large language models like chat gpt and other models which are developed by your Google or Meta or okay, so how many uh, parameters will be there? In a simple architecture got 4000. So in a heavy architecture we will be getting billions of parameters, and that's what they have trained their model over the data with billions of parameter. तो उनका लाइट वेट जो मॉडल होता है ना, वो 8 बिलियन पैरामीटर का ही होता है, लाइट वेट 8 बिलियन का. और ऐसे होता है 80 बिलियन का. ठीक, इतने पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल होता है वो. ओके, अब आप खुद ही देख सकते हैं एक छोटे आर्किटेक्चर में यदि 1000 मिल गया, सो व्हाट विल हैपन इफ यू extend the architecture, if you extend the layers, if you add more neurons here, तो फिर अलग ही बात है फिर. ठीक है, देन आई परफॉर्म द कन्फिग्रेशन, मॉडल को कन्फिगर करा, कंपाइल करा, एंड यू वेरी वेल नो व्हाट हैपेंस हियर. आई प्रिंटेड द शेप, एक्स ट्रेन शेप, वाई ट्रेन शेप. ओके, तो ये शेप है. तो माई डेटा सेट इज हैविंग 16,512 एंट्रीज, 512 एंट्रीज इतनी है, और 8 कॉलम्स आर देयर. ओके फाइन. और ये मेरा टारगेट है जिसमें 16,512 एंट्रीज हैं. टारगेट में ओनली वन फीचर रहता है. ओके, बाकी यहाँ पर सारे फीचर्स रहते हैं जो ट्रेन करना है मुझे. देन हियर आई स्टार्टेड training of my model. Okay, so model dot fit. I'm going to fit data into the model. That means I'm going to fit this data x train and y train into this architecture. इस आर्किटेक्चर में मुझे देना है वो डेटा. ओके, तो वो डेटा
डेंस लेयर से पास होगा, फिर इस डेंस लेयर से पास होगा, फिर इस डेंस लेयर से पास होगा। ओके, तो वो एक आउटपुट देगा, एक प्रिडिक्शन देगा वो। ओके, सो फिट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव डेटा टू द मॉडल। Okay, where whatever be the maths which is being done in a model, that is represented by fit. ओके, तो जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, वेट एंड द बायस हैं पैरामीटर्स, अब आप जब मॉडल के अंदर डेटा को फिट करोगे तो वो क्या होंगे, ट्रेन होंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रेनिंग का कोड है, मॉडल डॉट फिट ट्रेनिंग का कोड है। ठीक है, सो एक्सट्रीन ले लिया, वाई ट्रेन ले लिया, 100 इटरेशंस तक आई वांट टू ट्रेन माय मॉडल, इट्स अप टू माय चॉइस। जैसे मैं इसको एक काम करता हूँ, 30 कर देता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इसको 30 करा। बैच साइज का कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो, कि देखिए मेरे पास जो डेटा है दैट इज 16,512 रोज आर प्रेजेंट इन द डेटा। ओके, एंड इतने सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, सैंपल्स हैं। ओके, सो एक काम करता हूँ, बैच में देना चाहूंगा मैं, आई वॉन्ट टू गिव द डेटा इन अ बैच। तो एक बैच का, फॉर वन बैच द साइज आई एम डिफाइनिंग फ्रॉम माई साइड इज 32, डिपेंड करता है, कई लोग 64 भी ले लेते हैं, कई लोग 128 भी कर देते हैं, एंड कई बार बैच साइज और रिड्यूस भी होता है, दैट इज 16 भी लेते हैं, 8 भी लेते हैं, डिपेंड करता है। ओके, अभी माई डेटा सेट इज नॉट सो मच लार्ज, it's just only a housing data. So just for convenience, I'm taking batch size 32. Okay, and I included one more thing, that is a validation split. यानी ट्रेनिंग में से 20% डेटा और आप कट ऑफ करोगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन ऑल्सो आई एक्सप्लेन यस्टरडे। ओके, तो ट्रेनिंग का डेटा आपके पास है 80%। ओके, आपका जो स्प्लिटिंग था उसमें 80% ट्रेनिंग का डेटा था, 20% टेस्टिंग का था। तो उस 80% में से यू आर स्प्लिटिंग फर्दर मोर 20% फॉर द वैलिडेशन। ओके, तो वो हो जाएगा 16 आउट ऑफ 80। 20% यदि आप और निकालते हैं तो 16% का जो डेटा है वो हो जाएगा वैलिडेशन के लिए, और 64 हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए। द काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू, 80 इंटू 20/100 करोगे तो 16 आएगा। तो वैलिडेशन में 16 जो पोर्शन है, 16% वो अलग कर दिया, और 64 की ट्रेनिंग होगी, 64% ऑफ द डेटा की ट्रेनिंग होगी। ओके, एंड कल फिर मैंने आपको ये भी बता दिया ये 413 आया कहां से, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द 413, यानी कि आउट ऑफ 16,512, ये आपका ट्रेनिंग था ना, 16,512, इसमें से आपने 20% वैलिडेशन के लिए यू हैव सेपरेटेड। तो ये 16,512 इज नियर अबाउट 13,000 बचेगा ट्रेनिंग के लिए, और 3,000 वैलिडेशन में आ जाएगा। तो 13,000 जो बचा उसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 32 से, तो पता चल जाएगा कितनी बैचेस आएंगी, हाउ मेनी बैचेस विल बी देयर। ओके, तो 413 बैचेस आ रही हैं टोटल मिला के। जब आप 13,000 कुछ डेटा को बैच में तोड़ेंगे और हर एक बैच का साइज 32 होगा तो okay, this will happen. So 413 batches will be made. So each and every batch will be trained, मतलब वो जो डेटा है एक बैच का जिसमें 32 पॉइंट्स हैं। ओके, और वो भी रैंडम है, ये पॉइंट्स कहीं से कैसे भी दे आर बीन कलेक्टेड। ओके, दीज आर ऑल रैंडम पॉइंट्स। यू आर हैविंग अ डेटा सेट ऑफ 13,000 एंट्रीज, आउट ऑफ विच there are 413 samples are created, and every sample is having 32 data points in it, and they are collected randomly. ये सब ऑटो प्रोसेस अंदर हो रहा है। ओके, फाइन। तो ये पूरा एक मेरा ट्रेनिंग हो गया, पूरी 413 बैचेस पर वो सॉल्व हो गया, फर्स्ट इटरेशन मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, इट इट ऑल्सो टोल्ड व्हाट आर द लॉसेस। ओके, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन में बोला था कि भाई मुझे लॉस चाहिए, दैट इज एमएससी, और इवेल्युएट में करूंगा, मतलब चेक करूंगा एमएई से। एमएससी मीन्स मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर मीन्स प्रिडिक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस, दैट इज द एरर।
ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर, आई ऑल्सो टोल्ड यू द फॉर्मूला यस्टरडे, yp माइनस ya का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N का रूट, दैट विल बी MSC, एंड MAE इज yp माइनस ya का एब्सोल्यूट, है ना, वो एब्सोल्यूट एरर है ना, तो y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल का एब्सोल्यूट, दैट इज MAE। ओके, तो भाई ये जो लॉस आया है, दिस इज ट्रेनिंग लॉस एंड दिस इज ट्रेनिंग एब्सोल्यूट एरर। ये है वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो आपके पास दो लॉसेस हैं, यू आर हैविंग टू लॉसेस। एक तो, अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बातें, जस्ट केयरफुल्ली, ये ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग डेटा का, और ये वैलिडेशन का है। यू स्प्लिटेड योर डेटा इनटू टू पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड द वैलिडेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहां पर अभी टेस्ट का तो कोई मैटर ही नहीं है, टेस्ट तो जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसका बाद डालेंगे, विल यूज द टेस्ट आफ्टरवर्ड्स। अभी तो जो कुछ चल रहा है वो ट्रेनिंग पर ही चल रहा है। ओके फाइन, ये साफ है। सो ये इतना हुआ, लेट मी, ओके इसको कंपाइल भी कर देता हूं मैं, एंड लेट मी रन दिस कोड। ठीक है, 30 इटरेशंस तक चला देते हैं, फाइन। So one is the training loss and the training absolute error, and this is the validation loss and the validation absolute error. Okay, for 30 iterations I am running my training. Okay, and what's my expectation is that loss should have to be reduced. If the loss are getting less, then only I will say that my model is learning. If the losses are not reducing, if the losses are not coming down, that means the prediction and actual is having a difference. ओके, जो प्रिडिक्टेड का वैल्यू आ रहा है एंड द एक्चुअल का वैल्यू आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है, यदि लॉस कम नहीं हो रहे हैं तो। ओके, तो ट्रेनिंग में मुझे यही काम करना है। फाइन, ये ट्रेन हो गया मेरा मॉडल। देन लेट मी टेक द डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी, दैट इज द मैटप्लॉटलिब। ओके, एंड देन once my model got trained, I will be using test data, X test and the Y test. Let me take this test data to evaluate my model, to check whether my model was trained properly or not. So I will be taking this test data. Let me run this code. The mean absolute error over the test data is coming to be 0.35. That is the error which is coming at the testing data. So ट्रेनिंग से ट्रेन हो गया, ठीक है। टेस्ट डेटा अनसीन डेटा है ना, मॉडल ने वो देखा नहीं है, मॉडल ने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा देखा है, उसी से वो ट्रेन हुआ। मॉडल हैवंट सीन दिस डेटा। नाउ इफ वी से दैट माय मॉडल वाज ट्रेन्ड प्रॉपरली, उसके लिए उसको टेस्ट पर देखोगे, वी आर गोइंग टू सी ओवर द टेस्ट, एंड एट द टेस्ट इफ इट इज गिविंग लेस एरर, then we'll say that model is correctly interpreting the data and it is giving the prediction which is quite similar to the actual. हम यही चाहते हैं, that's what we want, that the model produce the result which should be nearly to the actual. okay, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मॉडल है ना, ओके ये एक आर्टिफिशियल मॉडल है ना, एआई के एआई बेस्ड हो गया ना, आपने डेटा पर किसी को ट्रेन करा और उससे ऑटोमेट कर रहे हो और उससे बोल रहे हो कि नाउ यू गिव द आंसर। ओके, तो किसी को ट्रेन करने के बाद उससे पूछते हो ना कि तेरे को आया कि नहीं आया, यही हुआ, ठीक। एंड हियर आई एम मेकिंग द प्लॉट्स फॉर इट। let me see that if the training was successful or not, because here there are many values. ओके, और आप कब तक देखते रहोगे, ये वैल्यू तो खेलते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। देयर आर मेनी वैल्यूज प्रेजेंट हियर, सो इट्स बेटर दैट माय लॉसेस आर रिड्यूस्ड और नॉट। मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट आई डिड, दिस इज माय प्लॉट फॉर द ट्रेनिंग। okay, this is my plot for the training, and you can see that one is the blue line and one is the orange. The blue line is a training loss, blue one is a training, and orange is a validation loss. okay, you can see, ठीक है, ये लॉस है ट्रेनिंग का और वैलिडेशन का, और ये एरर है ट्रेनिंग का और वैलिडेशन का। ओके, आप देख पा रहे हैं दोनों कम हुए हैं,
दैट मीन्स लॉसेस एरर्स आर रिड्यूस्ड। ये मैं चाहता था, मैं यही तो चाह रहा था कि लॉस कम होना चाहिए, हुए दोनों कम हुए। दैट मीन्स आई मेड अ सिंपल आर्किटेक्चर हियर, and whatever be the configuration I have given, whatever be the architecture I made, that is okay। ऐसा आर्किटेक्चर ने लॉस को कम कर दिया, मैं ये चाह रहा था, और वो हो गया, मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, फाइन। तो क्या कोड करा मैंने यहां पे, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री लॉस, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री वेल लॉस, यानी ट्रेनिंग लॉस को वैलिडेशन लॉस के साथ कंपेयर करना है। सो यू आर मेकिंग अ सब प्लॉट। सब प्लॉट मीन्स ये एक ही जगह पर ना दो प्लॉट बनते हुए नजर आएंगे आपको। दिस इज वन एंड दिस इज टू। टू प्लॉट्स यू आर गोइंग टू शो इन अ सिंगल रो। ओके, सो वन टू वन का मतलब यही होता है, रो नंबर वन, ठीक है, रो नंबर वन, एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, एंड जो है आपको एक एक प्लॉट आपको नजर आ रहा है यहां पर। ठीक है, फाइन। तो पहले वाले में ये वाला शो होगा, एंड इन द सेकेंड वन दिस विल बी शोड। सो दिस प्लॉट विल बी फॉर द लॉस एंड दिस प्लॉट विल बी फॉर द MAE। So again, here I am comparing the training and the validation loss, and here I am comparing training error and the validation error। The expectation is कि validation का loss और validation का error ये ट्रेनिंग से कम होना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो आइडियल कंडीशन होगी। ओके, दैट विल बी द आइडियल कंडीशन। फाइन, अभी आप देख रहे हैं दैट बोथ आर रिड्यूसिंग, बोथ आर गेटिंग लेस, दे आर कंपेरेटिव इन नेचर, है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, दे आर कंपेरेटिव इन नेचर। यहां पर भी कंपेरेटिव है। कुछ जगह पर आपने देखा वैलिडेशन लॉस ट्रेनिंग से बढ़ गया, मतलब एरर बढ़ गया, ये MAE, वैलिडेशन एरर इज मोर देन द ट्रेनिंग। ओके, तो हो सकता है यहां पर मेरा मॉडल वो पॉइंट को समझ नहीं पाया, तभी एरर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वैलिडेशन लॉस एंड द वैलिडेशन एरर शुड बी लेस देन द ट्रेनिंग, तो फिर मेरा मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ठीक है, कंपेरेटिव भी है तो चला लो अभी। सो दिस इज वन ऑफ द कोड फॉर द रिग्रेशन I want you to explain. I have one more code that is related to the classification problem। Okay, so in a classification problem, here it is। वो रिग्रेशन का था, क्लासिफिकेशन का, एंड एवरीथिंग इज सेम। हाउएवर यहां पर मैंने ब्रेस्ट कैंसर का डेटा लिया। अच्छा, वो रिग्रेशन था तो कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा लिया था, बिकॉज जो टारगेट वेरिएबल है यहाँ पे वो कंटिन्यूस इन नेचर है। रिग्रेशन में यही होता है, द टारगेट इज कंटिन्यूस इन नेचर। एंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, टारगेट इज कैटेगरिकल इन नेचर। तो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, दैट मीन्स कैंसर है या कैंसर नहीं है, 0 या 1। ठीक है, इस टाइप का डेटा है ये। ऑल राइट, सो इफ यू वांट टू सी, एक काम करते हैं, न्यू नोटबुक बता देता हूं मैं। ओके, आई स्टार्टेड अ न्यू नोटबुक। ओके, फाइन। सो यू आर नॉट टेलिंग कि सर आपने एंटायर स्क्रीन तो शेयर करा ही नहीं है, यू आर जस्ट लिसनिंग। ओके, नाउ द एंटायर स्क्रीन इज शोन। ये था वो कोड। ओके, here is the code which I was explaining, मतलब going to explain now for the classification। Okay, so let me take all the libraries, necessary libraries। Okay, fine, these are all necessary libraries। I had explained you everyone, ठीक है, अबाउट दीज लाइब्रेरीज, जैसे numpy है, टेंसरफ्लो है, सिक्वेंशियल है, डेंस लेयर है, बता दिया। ब्रेस्ट कैंसर का डेटा ले लिया, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द sklearn डेटा सेट। ओके, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, जैसे आपका वो कैलिफोर्निया का डेटा सेट वॉज देयर ना, सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट in the sklearn data set। So there are many data sets, benchmark data sets are present in sklearn, you can pick up any of them।
Okay, and you can do your task. Fine. Train test split scalar, I already explained. Accuracy score. See, this is something new which I'm adding. क्योंकि क्लासिफिकेशन में ना एक्यूरेसी चेक होती है, ध्यान देना. इन केस ऑफ रिग्रेशन वी डू चेक एरर दैट इज MSC MAE, लेकिन क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी चेक होती है. ओके, दैट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द इंस्टांसेस आर करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय माय मॉडल. यानी उसने जीरो को जीरो कहा, वन को वन कहा, ऐसे कितने इंस्टांसेस को उसने सही इंटरप्रेट करा. तो एक्यूरेसी चेक होती है क्लासिफिकेशन में. ओके, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग वन एडिशनल library, that is accuracy score from sklearn.metrics. Okay, and then I'm loading my breast cancer data as I did loaded the California housing. Okay, here is the data set. Fine, if you want to print you can. Okay, ये आप कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर है mention, you can print the feature names print कर दो आप. Okay, so these are the features which are present in my data set breast cancer में. मीन रेडियस, टेक्सचर, पैरामीटर, एरिया, स्मूथनेस, कंपैक्टनेस, कनकेविटी एंड मेनी मोर. इतना बड़ा डेटा है वो. ओके, दीज आर द फीचर्स विच आर प्रेजेंट. एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द टारगेट ऑल्सो, सो आप उसका नाम भी प्रिंट कर दीजिए. ठीक है, टारगेट ऑल्सो कैन बी प्रिंटेड. ओके, सो हियर इज डेटा. ओके, डेटा ही लिया है. हाँ, ठीक है, फाइन. सो डेटा डॉट टारगेट नेम्स. मेलिग्नेंट एंड बेनिंग. एक्चुअली क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर में, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं. इफ यू नो, आई होप वुमेन माइट बी नोइंग बेटर. तो उसमें, और डॉक्टर्स जो भी हैं वो एक्सपर्ट्स वो जानते हैं, और मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट ML इंजीनियर के तौर पे जानता हूँ. तो मेलिग्नेंट एंड बेनिंग, ये दो टाइप के कैंसर होते हैं, मतलब ट्यूमर होते हैं. बेनिंग जो होता है वो कैंसरस नहीं होता एक्चुअली, शायद मुझे ऐसा बोलना चाहिए. बेनिंग इज नॉट द, मेलिग्नेंट जो होता है वो कैंसरस होता है, ये ट्यूमर. और ये शायद एक्सपांड करता है, ये फैलता है. बेनिंग फैलता नहीं है. इट बेनिंग डजंट एक्सपांड, मेलिग्नेंट एक्सपांड. तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन वाली बात है, ये नहीं है. ओके, आई गेस शायद ये अर्ली स्टेज का मैटर है, तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है. मेलिग्नेंट का थोड़ा सा इशू है. ओके, तो here as we are dealing with the classification problem, so that's why there are two classes are mentioned, malignant and benign. Okay, fine, and these are the features. Okay, name of the features. ठीक है, अब क्या करना है आपको. तो ये आपने एक्स एंड वाई तो बना ही लिया है, फीचर एंड टारगेट आपने बना लिया. उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दो. ओके, यू कैन डू दैट एज वी डिड इन द कैलिफोर्निया वाला. तो ये पूरा की पूरा कोड वैसा की वैसे ही जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. द कोड इज गोइंग वेरी सेम. ये देखो, ये कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया. ओके, एंड स्प्लिट करने के बाद स्केल कर दिया. ओके, एज आई डिड इन द कैलिफोर्निया वन ऑल्सो, सेम थिंग हियर आई एम डूइंग. इसको स्केल कर दिया. स्केल करने के बाद आप जो है आर्किटेक्चर बना दीजिए. ठीक है, अगेन मॉडल सिक्वेंशियल ले लीजिए. कंट्रोल सी, आई एम टेकिंग मॉडल सिक्वेंशियल. एंड वही करना है. यू हैव टू ऐड डेंस लेयर एंड यू हैव टू यूज रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. बस एक लास्ट में आखिरी वाली लेयर पे सिग्मोइड होगा, बस एक चेंज होगा. क्यों? क्योंकि सिग्मोइड क्लासीफायर है, दैट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन. वो जो एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड, यू वेरी वेल नो, आई हैव टॉट यू. ठीक है, तो आप ये बनाइए. ठीक, मॉडल डॉट एड एड डेंस लेयर. अब जरा एक चीज ध्यान देने वाली बात है, फीचर कितने, व्हाट इज अ शेप. पहले शेप देख लेता हूं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा डेंस लेयर पे या इनपुट पे कितने न्यूरॉन रखना है. सो लेट मी चेक द शेप फर्स्ट. सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप. ओके, 455 रोज हैं, 30 कॉलम्स हैं.
डेटा छोटा है. Okay, only 455 rows are there and 30 columns are there. तो क्योंकि कॉलम्स ही फीचर्स होते हैं, तो 30 हैं. तो डेटा क्योंकि मेरा छोटा है, आई कैन गो अहेड विथ 10, कर सकता हूं. अब ये आपकी इच्छा है. आप बोलो कि सर 30 फीचर्स हैं, तो सर आप कम से कम मिनिमम 30 न्यूरॉन तो ले लो सर. काइंडली टेक 30 न्यूरॉन एटलीस्ट. ठीक है, कोई इशू नहीं, ले लो. ओके, आपकी इच्छा. 30 न्यूरॉन ले लो. 10 पे भी काम करता वो, क्योंकि डेटा छोटा था, है ना. तो ये दिमाग आपको लगाना है. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. थिंक कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आई कैन टेक, हाउ मेनी लेयर्स आई रिक्वायर. सो आर्किटेक्चर इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. कोई नहीं बोल सकता, नो वन कैन से कि इसका यही आर्किटेक्चर बनेगा, ये डेटा का यही बनेगा ना. कोई नहीं बोल सकता. आपको यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटेशन फ्रॉम योर साइड. You have to add the layers, you have to add the neurons, and you have to train the model. Then you have to evaluate, check the results. If the results are coming perfect on your architecture, then you can finalize it. So देखिए, मेरे पास तो यहाँ 10 था, मैंने उसको 30 कर दिया. आप ये देखो. और फिर यहाँ पर हिडन लेयर है. ओके, ये इसको रन करता हूँ पहले. लेट मी ऐड. अब एक और डेंस लेयर ऐड कर दी मैंने 30 से. अब मैं एक काम कर रहा हूँ. From 30, let me proceed ahead to 60 neuron. Let's say activation function relu ले रहा हूं, not 10h. relu activation function. That's what I'm taking. 10h 10h भी ले सकते थे. 10h -1 to +1 के बीच के अंदर वैल्यू को रेंज करता है. एंड रेलू यू वेरी वेल नो, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज नेगेटिव द आंसर इज 0, और पॉजिटिव होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब वही वही आ जाएगा. सेम नंबर विल कम. दैट इज व्हाट रेलू डू. So, because we are building artificial neural network, and it has been told that ReLU activation function is suitable for artificial neural network, so consider ReLU only. इसी को लेते हैं. ठीक है, तो ये डेंस लेयर ऐड कर दो, 60 न्यूरॉन ऐड कर दो, एक्टिवेशन फंक्शन ReLU ले लो, रन द कोड. अब एक काम करता हूं, लेट मी कंट्रोल सी, और मैं अब 30 कर देता हूं. वन मोर डेंस लेयर लेट मी ऐड, उसको भी ReLU कर देता हूं. और आखिरी लेयर, वन मोर लेयर आई टेक, लेट मी कॉपी पेस्ट, एंड आखिरी डेंस लेयर पर आई विल टेक ओनली 1 न्यूरॉन, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड करूंगा. sigmoid. Why? Because it's a binary classification. Because my target is having two classes, benign and malignant. Okay, so it's a binary classification. All right, so let me take only one neuron. As I already explained you in the previous classes that only one neuron is required for binary classification, and the activation function will be sigmoid. Okay, that is also I'm adding. कर दिया, आर्किटेक्चर बन गया. ठीक है, मॉडल मॉडल को कन्फिगर कर दो. ठीक है, कन्फिगर करो. तो कन्फिगर करने के लिए यहाँ लॉस होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और इवेल्युएशन क्राइटेरिया मैट्रिक्स होगा एक्यूरेसी. ध्यान देना. ओके, सो हियर इट इज. जब आप मॉडल को कॉन्फ़िगर करोगे, यानी उसको समझाओगे कि बेटा तेरे को कैसे कैलकुलेशन करने, तेरे को ऐसे कैलकुलेशन करने, ये ऐसे, दैट यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर सेल्फ with respect to Adam optimizer. Okay, that means you have to reduce the weight and the bias and whatever be the calculation are going to be done. That is for the optimization process. Adam technique का इस्तेमाल करना, Adam algorithm का इस्तेमाल करना. Loss calculate करने के लिए binary cross entropy. In the previous class, I already explained you what is cross entropy, what is binary cross entropy. I already explained. सारा recording में है आपके पास. ओके, एंड इवेल्युएट करने के लिए मुझे एक्यूरेसी चेक करना है. यानी कि वंस द मॉडल इज गोइंग टू बी ट्रेन्ड, देन एक्यूरेसी शुड हैव टू बी इंप्रूव्ड. ये ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई लॉस कम हो, एक्यूरेसी बढ़ जाए. ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है. वो तो देखेंगे क्या होगा ट्रेनिंग के दौरान. सो लेट मी कंपाइल इट. तो भाई कंपाइल हो गया. अब इसकी समरी प्रिंट कर दो. एक बार मॉडल बिल्ड हो गया ना, यहां पर मॉडल बिल्ड होके कॉन्फ़िगर हो गया. अब समरी प्रिंट करो इसकी, मॉडल डॉट समरी. ओके, हियर इट इज. ये देखो, फाइन, इसकी समरी प्रिंट हो गई. मॉडल सिक्वेंशियल है, इसमें 1 2 3 4 4 डेंस लेयर है. ठीक है, 1 2 3 4.
पहली वाली डेंस लेयर में 30 न्यूरॉन है, दूसरी में 60 है, तीसरी में 30 है, एंड द लास्ट वन इज हैविंग 1 न्यूरॉन। बैच साइज कुछ दिया नहीं, अभी नन है, ठीक है। एंड दीज आर द नंबर ऑफ पैरामीटर, यू वेरी वेल नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैरामीटर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में सब है। बस ठीक है, और क्या, ट्रेनिंग शुरू कर दो। ओके, स्टार्ट डूइंग द ट्रेनिंग। ओके, तो ये उठा लेता हूं, कंट्रोल सी, ठीक है, ट्रेनिंग करते हैं अपन। फाइन, हटाओ इन सबको, इसको भी हटा दो। वर्बोस का मतलब ये होता है कि इट्स गोइंग टू रिकॉर्ड द लॉग फाइल। वर्बोज इक्वल टू 1, ये एक एडिशनल पैरामीटर है, दैट मीन्स जो भी ट्रेनिंग, वट एवर बी द ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन ना, इट विल मेंटेन अ लॉग फाइल। दैट इज वाई वी आर टेकिंग वर्बोस, है ना, रिकॉर्ड रखने का, रिकॉर्ड रखने वाली बात हो गई है कि जो तुम कर रहे हो ट्रेनिंग, उसकी रिकॉर्ड रखो। दैट इज वर्बोस। खैर, जरूरत नहीं है मुझे किसी रिकॉर्ड रखने की, हटा रहा हूँ। ओके, लेट्स गो वेरी सिंपल। So X train, Y train, I'm giving to train the model. EPOS 20, 20 times I need to iterate, है ना, 20 times ट्रेन करना है। क्या होता है कि वो डीप लर्निंग में आपको बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। एंड क्यों करना पड़ता है ऐसा? सर आप ये क्यों नहीं बोला सर ईपो 1 ही ले लो सर, कहे के लिए अपना और हमारा टाइम भी खराब हो रहा है, एक ही ईपो कर दो ना, ईपो इक्वल टू 1, वन टाइम में कर दो। तो भाई एक बार में किसी के बात समझ में थोड़ी ना आती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, एक बार में किसी की कोई समझ में नहीं आती, जब तक कि, ठीक है, थोड़ा सा हड़काना पड़ता है। तो ये ईपो जो है ना, ऐसा कहा जाता है, दैट्स बीन सेड इनटू द डीप लर्निंग दैट एज मेनी एज ईपोज शुड बी देयर, सो मॉडल विल लर्न बेटर। ओके, अब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ डेटा। माई डेटा इज ऑलरेडी हैविंग फ्यू नंबर्स ऑफ द रोज एंड द कॉलम, वैसे ही छोटा है वो, ऊपर से तुमने मॉडल इतना हैवी बना दिया, ये देखो, आपने 30 न्यूरॉन, 60 न्यूरॉन, 30 न्यूरॉन इतने भी ले लिए, और 3-4 लेयर जोड़ के चल रहे हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता दैट इट रिक्वायर सो मेनी इटरेशंस, क्योंकि ईपो में क्या होगा, वेट एंड बायस एडजस्ट होंगे, दैट्स गोना हैपन। ओके, तो अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 20 ईपो के अंदर ही बेटर एडजस्ट हो जाएंगे वो, ताकि मेरे को सही आंसर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सब मान के चल सकते हैं, वो तो करने के बाद पता चलेगा, मानने को तो कुछ भी मान लो तुम, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लेट मी रन द कोड। अच्छा, बैच साइज यहाँ 16 दे दिया, अब वो डेटा इतना छोटा है तो बैच 16 की बैच में दे दो, ठीक है। और कम करना है तो भाई और कम कर दो, कोई इशू नहीं है, 8 कर दो, बैच साइज 8 कर दो। वैलिडेशन स्प्लिट भी कर दिया यहाँ पर मैंने। तो तुम्हारा ट्रेनिंग में कितना, हाउ मच डेटा यू आर अवेलेबल इन द ट्रेनिंग, 455। 455 का 20% वैलिडेशन में चला जाएगा, यानी 455 इंटू 20/100 कर लो, उतना वैलिडेशन में चला जाएगा। यानी ट्रेनिंग में तुम्हारे पास कितना बचेगा, 400 800 बचेगा, 400 कुछ बचेगा। और 400 को डिवाइड करना 8 से, तो पता चल जाएगा कितनी, कितने बैचेस बनेंगे, यही पता चल जाए, देखो। सर ईपॉक के लिए स्टार्टिंग वैल्यू कितना रखना चाहिए? लाइक डायरेक्टली हम 1000 नहीं रख सकते, रख सकते हैं? सर कर सकते हो आप, बिल्कुल, यू कैन कीप 1000 ऑल्सो। ओके, 1000 इपोज रख लो, लेकिन रिक्वायरमेंट है क्या 1000 की, दैट इज द क्वेश्चन। हम्म। ओके, as I told that your data is less, your architecture is also not that much heavy, मतलब, ठीक है, 3 to 4 लेयर ऐड करा है, अब इसके लिए इतना ही हैवी है वो, मतलब मैं तो चाह रहा था 2 या 3 लेयर, 3 लेयर ही काफी है, ठीक है। स्टिल वी हम्म। मेड 4 लेयर्स आर्किटेक्चर। सो ये सब या आपका एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे मॉडल में जो डेटा का पैटर्न है, यदि वो कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, सो आई हैव टू ऐड मोर लेयर्स, आई हैव टू ऐड मोर न्यूरॉन, यानी मॉडल को मेरे को कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा का जो पैटर्न है उसे समझने के लिए। ओके, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको बहुत बेसिक से ही बता रहा हूँ। हम्म। तो सर हाउ मेनी इपॉक्स इज सफिशिएंट? सर जैसे ये वाला कोड है, इसमें यू कैन सी दैट लॉसेस आर गेटिंग वेरी वेरी लेस एंड एक्यूरेसी इज 99। तो सर 99, 20 इपोज आर वेरी हम्म। वेरी मच सफिशिएंट फॉर इट। 99% एक्यूरेसी इट इज गिविंग सर, इट इज वेरी मच सफिशिएंट, एंड ठीक है वैलिडेशन सर। एक्यूरेसी इज 95 सर। हम्म। ओके, सो इट्स लुकिंग सफिशिएंट। ओके, तो you and again it's a hit and trial method sir, you can go ahead with 10 iterations also, 10 epo,
ओके अच्छा, एक बात का ध्यान रखना भाई, ओवर फिटिंग ना हो जाए, वो भी ध्यान रखना है सर। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग एक्यूरेसी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज 99 एंड द वैलिडेशन एक्यूरेसी इज 95, यानी वैलिडेशन ट्रेनिंग से कम चल रहा है, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 4% का अंतर है यहाँ पे। इफ दिस हम्म। दिस इफ दिस डिफरेंस इज मच मोर देन करंट, यानी कि ये 99 ट्रेनिंग है और वैलिडेशन आपका 80 हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो गई, ओवर फिटेड मॉडल है वो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इज मोर एंड टेस्टिंग इज लेस, यानी ट्रेनिंग पे तो अच्छा बता रहा है, टेस्टिंग पे फेल हो गया बेचारा। तो वो भी देखना है आपको, ओवर फिटेड मॉडल नहीं बनाना। सो दिस करंट सिनेरियो, इफ आई चेक, तो 10 इटरेशंस तक भी मेरे को 99 45 95 मिल चुका था, मैं 10 पे भी रोक सकता था, कोई इशू नहीं था। इसको 20 तक तो मतलब मैं जानबूझ के ले गया, कोई मतलब नहीं, कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा। देखो यहाँ 9945 होने के बाद, जैसे 8 इटरेशन के बाद उस भाई ने बिल्कुल भी चेंजेस शो नहीं करे। देखो 8 इटरेशन पर भी 9945, 9th इटरेशन पर भी 9945, 10th इटरेशन पर भी 99, ये पूरे जितने रेस्ट ऑफ द इटरेशन है सब जगह 9945 से 20 वाले पर इसने थोड़ा बहुत चेंज करा, 9973 हो गया। वो भी कोई काम का नहीं मेरे लिए इतना। 99 आ गया, उसके बाद ही अपन हाथ खड़े कर देते हैं भाई, बहुत हुआ। देखिए, और इससे क्या 100 के ऊपर लेकर जाओगे क्या? तो वो तो होता ही नहीं। नहीं, वो तो ठीक सर है, डेटा सेट ऐसा है ना, इसलिए बाकी हाँ डेटा सेट बड़ा बाकी तो छोटा है। 60 70। हाँ तो वही सर, तो जैसे डीप लर्निंग के अंदर दैट इज ऑल्सो वन वन ऑफ द पॉइंट विच इज बिन रेज, दैट फॉर द डीप लर्निंग यूज ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल रिक्वायर्स अ डेटा विच शुड बी ह्यूज, जिसमें कम से कम आपके पास 1 लाख रो तो हो, कम से कम 50,000 60,000 70,000 80,000, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ रोज शुड बी, डेटा बड़ा होना चाहिए डीप लर्निंग के लिए। छोटे मोटे डेटा के लिए डीप लर्निंग लगाने का सेंस नहीं बनता सर। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे को तो समझाना आर्किटेक्चर, अच्छा ये आर्किटेक्चर आप फॉलो अप कर सकते हो बड़े डेटा पर, अलग कुछ नहीं होगा, है ना, मतलब जो ये थीम है ये सेम रहेगी। now if instead of this 445, for example, you are having 45,500 rows present in your data, still this architecture is applicable। हाँ, आप देखोगे एक्यूरेसी कम हो रही है तो थोड़ी और लेयर जोड़ दो। मैंने 3 4 लेयर बनाई थी, आप 2 3 लेयर और जोड़ दो, न्यूरॉन की संख्या और बढ़ा दो। ये चेंजेस कर सकते हो आप यहाँ पर, और आपको अब पता चली गया कि लेयर वेयर कैसे क्या ऐड करनी, क्या कहानी होती, सब क्लियर हो गया बात। ओके, तो ये हो गई ट्रेनिंग मेरी, तैयार हो गई ट्रेनिंग। अब टेस्टिंग डेटा पर मैं चेक कर लेता हूँ भाई, रिजल्ट क्या है। लेट मी चेक ओवर द टेस्टिंग डेटा। तो मॉडल ट्रेन होने के बाद आई नीड टू डू द प्रिडिक्शन बाय द मॉडल। ओके, so model dot predict, okay, that's what I'm doing। Okay, I'm checking the prediction done by the model dot predict x test, that means here I'm going to give the test data, and the result which I'm going to get will be probability values। ओके, मॉडल प्रिडिक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी देगा, ध्यान रखना, इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी। ओके, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यहां पर। ठीक है, तो जो प्रिडिक्शन आएगा वो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा। ओके, एंड क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ऑल राइट, सो in case of binary classification you very well know that the threshold comes at 0.5, this is 0.5 and this is considered as a threshold। Okay, so whatever be the probability I am getting, if the value is more than 0.5, so the answer will be 1, and if it is coming less than 0.5 then the answer will be 0। Okay, so 1 and 0 will be the answer। Now 1 means malignant and 0 means benign, that's what it means। All right, so don't forget what kind of task you are performing। So in model.predict it will give you the prediction, that will be a probability value, that means between 0 to 1। Okay, and then you will check with respect to the threshold and provide a integer value to it। Yes sir, ask the question। Sir, I have one doubt regarding that sigmoid. हाँ हाँ Normally, when we say above 0.5 to हाँ, 1, above it point is five sir, yes sir, above 0.5 point five, is 1 you'll consider. हाँ हाँ, Sir. above point Say, five sir, it is 1।
So it has to be 0.6 something like that. हाँ हाँ, 0.6 पर भी 1 ही होगा सर. 1, that means Sir. class will be 1. Okay, सर sir. Say हाँ when 0.5, sir, what it will decide? हाँ, 0.5 पर भी 1 ही होगा सर. 1 ही होगा, sir. 1 ही So होगा. it is 0.5 to 1, sir, in हाँ that range. हाँ, 0.5 to 1 is 1. Okay, That means sir. the class number 1. And 0 to 0.5 means class number 0. Okay, sir. Fine, sir. Thank you, sir. Okay, so ये आंसर रहेगा. And then you can print the accuracy also. What is the accuracy of my model? Okay, so 97% is the test accuracy. तो ये देखना पड़ता है. मेरा ट्रेनिंग का एक्यूरेसी था 99%, इन टेस्टिंग का एक्यूरेसी आया 97%. यानी ठीक है भाई, बढ़िया. ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए दोनों में. इफ देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग, तो फिर मॉडल ओवरफिटेड, ये आपको पता है. ओके, फाइन. तो इस तरीके से आपने एक्यूरेसी निकाला. अब एक्यूरेसी निकल गया है आपका, इनका प्लॉट आपको बताना है. लेट मी चेक, इन्होंने यहाँ पर प्लॉट भी बनाया नहीं बनाया. यस, बनाया. ओके, सो लेट अस मेक द प्लॉट्स ऑल्सो फॉर इट. इसका भी हम बना देते हैं, जैसे कैलिफोर्निया वाला बनाया था, उसका भी प्लॉट बना देते हैं. ओके, एंड व्हाट एलिमेंट्स यू हैव टू कंसिडर हियर. ओके, तो यहां पर आपको लेना है ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन. वहां किसका लिया था? देयर यू टुक कंपैरिजन बिटवीन ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस. वो रिग्रेशन था भाई, ये क्लासिफिकेशन है. तो रिग्रेशन में लॉस लेते हैं, क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी लेते हैं, है ना. मेरी बातों को आप जो है रिकॉर्ड पे तो चल ही रही है, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, ठीक है. तो वो तो रहेगी, आपको भी याद रखना है, ठीक. सो एक्यूरेसी, एंड देन यहां पर एक दूसरा प्लॉट बनेगा, वो है लॉस का. ये है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, है ना, वो वाला लॉस है. ओके, सो दिस इज द ट्रेनिंग लॉस एंड दिस इज द वैलिडेशन लॉस. तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है भाई कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग में जो एक्यूरेसी है वो बढ़नी चाहिए. दैट मीन्स मॉडल शुड लर्न कि 1 क्या है और 0 क्या है. दैट मीन्स मॉडल शुड लर्न कि यदि डेटा का पैटर्न ऐसा है तो वो 1 है, यानी मेलिग्नेंट है, और यदि डेटा का पैटर्न ऐसा है तो वो 0 है, यानी बेनिंग है. मॉडल शुड लर्न द पैटर्न्स इन द डेटा. तो एक्यूरेसी शुड बी गेटिंग इंक्रीज एज द ट्रेनिंग इंप्रूव्स, एज द ट्रेनिंग गो ऑन. तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बढ़ना चाहिए. और मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है भाई कि वैलिडेशन एक्यूरेसी ट्रेनिंग से भी ज्यादा होनी चाहिए. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है. अब वो पूरी हो ना हो अलग बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए. नहीं भी हो रहा है तो उसके क्लोज तो हो कम से कम. ये मेरी एक्सपेक्टेड, ये आइडियल ग्राफ है. ओके, दिस इज आइडियल ग्राफ कि वैलिडेशन एक्यूरेसी इज मोर देन द ट्रेनिंग एक्यूरेसी. एंड इसमें एक चीज और जुड़ेगी इस आइडियल ग्राफ में, लॉस. मेरा यह मानना है कि ट्रेनिंग का लॉस घटना चाहिए. जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती चली जाएगी, लॉस शुड हैव टू बी रिड्यूस्ड ट्रेनिंग का. और वैलिडेशन का तो और घटना चाहिए ट्रेनिंग से भी. ये चाहता हूं मैं, ये वैलिडेशन का लॉस है. नहीं तो कम से कम कंपेरेबल होना चाहिए. ट्रेनिंग एंड द वैलिडेशन लॉसेस जो है, बोथ शुड हैव टू बी रिड्यूस एंड दे शुड हैव टू बी कंपेरेबल. ऐसा होना चाहिए, ठीक है. नहीं होता कोई बात नहीं, देखेंगे. फाइन, ये लॉस का प्लॉट है, ये आइडियल प्लॉट है लॉस का. और वो आइडियल प्लॉट था आपके एक्यूरेसी का. ये अब देखो मेरे को क्या मिला, व्हाट आई गॉट. ये देखिए, ये मिला मेरे को कि ट्रेनिंग का एक्यूरेसी इंक्रीज हुआ, वैलिडेशन तो भाई ऊपर से ही इंक्रीज, फिर थोड़ा सा डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन थोड़ा सा, एंड मतलब वो 0.95 0.977 के बीच में झूल रहा है वो. ओके, इसी के बीच में चल रहा है वैलिडेशन. अच्छा, ट्रेनिंग का लॉस कम हुआ, वैलिडेशन का लॉस भी कम हुआ, लेकिन वो एक लेवल के बाद आके यहां पर बस. लेकिन वैलिडेशन लॉस इज मोर देन द ट्रेनिंग. आइडियल सिचुएशन ये होती कि वैलिडेशन ट्रेनिंग से कम होता, लेकिन ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है. अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, कि सर हमको जो आप बोल रहे हो कैन इट्स अ पॉसिबिलिटी, तो यू कैन चेंज इन द आर्किटेक्चर.
यू कैन चेंज इन द आर्किटेक्चर. क्या करोगे आप कि सर आपने कुछ मतलब मॉडल को ज्यादा लेयर देना छोटी डेटा पर, ज्यादा न्यूरॉन देना छोटे डेटा पर, इसका मतलब मॉडल को तुम रटाने की बात कर रहे हो, लर्न करने की जगह तुम उसको रटवा रहे हो कि देख बेटा सीख सीख सीख. मैं चाहता हूं मॉडल थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करे, एफर्ट्स करे मॉडल सीखने की. लेकिन आपने उसको ज्यादा कैपेसिटी देकर उसको रटवाने वाली बात कर दी छोटे डेटा पर. तो यू कैन डू वन थिंग सर, डेंस लेयर पर आप 10 कर दो, एंड दूसरी वाली जो डेंस लेयर है सर उस पर 5 कर दो, एंड एक और जो डेंस लेयर है सर, इतना बड़ा आर्किटेक्चर ही मत बनाओ सर, आप तो कमेंट कर दो, इसको हटाओ, इसको कमेंट करो, और सर आखिरी वाली डेंस इतना रख लो सर. सो लेट मी अगेन मेक मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल डेंस लेयर, अनादर डेंस लेयर, एंड दिस डेंस लेयर. मैंने सिर्फ 3 लेयर रखी अब तो. आई केप्ट ओनली 3 लेयर. ऑन द फर्स्ट आई टुक 10, सेकंड आई टुक 5, यानी और छोटे से छोटी सी लेयर पे पहले पे 10 न्यूरॉन रखे, दूसरे पे 5 रख रही है, और आखिरी वाले पे ओनली 1 न्यूरॉन. ये तो रह नहीं था, तो 1 तो क्लासिफिकेशन ये तो होता है. मॉडल को कंपाइल करा, उसकी समरी प्रिंट करवा दी, ठीक है, उसको ट्रेन कर दिया. ओके, उसको ट्रेन कर दिया. अब ठीक है, उससे प्रिडिक्शन करवा लो. ये नंबर देखोगे तो फिर अपना सर चकरा जाएगा. एक काम करते हैं अपन, तो डायग्राम से ही पता करेंगे कुछ ठीक हुआ है नहीं हुआ. ये देखो, नाउ यू कैन सी, अब थोड़ा सा स्मूथनेस आ रही है जो पहले के कंपेरेटिव. बताइए, you are seeing the plot na, you have seen the previous also, you have seen this plot also. Are you getting some smoothness here or not? Please tell me. हाँ अनिल सर सेट, हाँ सर लग रहा है स्मूथनेस तो आ रही है, और कंपेरेटिव आ रहा है, पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहे थे, अब आई एम गेटिंग द स्मूथनेस. समझ में आ रहा है या मतलब मैं कहानी किससे सुना रहा हूँ? जस्ट टेल मी. सर आपने चेंज चेंज पे किया है सर? हाँ, कोड तो चेंज करा ना. कोड में चेंज क्या, आर्किटेक्चर में चेंज करा. ओके, दैट्स व्हाट आई डिड. I just added only 10 neurons in the dense layer. I added 5 neuron in another dense layer. और ये तो 1 न्यूरॉन था ही डेंस लेयर पे, आखिरी वाली लेयर पे, तो सिर्फ 3 लेयर्स लिए मैंने. इसको तो हटा ही दिया, इसको कमेंट कर दिया. तो आई एम हैविंग ओनली 3 लेयर्स. यानी सीधी सीधी बात है, डेटा छोटा है तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. आर्किटेक्चर भी छोटे ही बनाओ, न्यूरॉन भी कम ही रखो. यदि तुमने ज्यादा बड़ा आर्किटेक्चर छोटे डेटा पे रख लिया ना, एंड मोर न्यूरॉन्स इफ यू केप्ट, तो वो जैसा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले थे ना यहाँ पे, वैसे देखने को मिले. अब देखो थोड़ा सा स्मूथनेस मिल रही है, एक्यूरेसी तो बढ़ रही है, वैलिडेशन भी बढ़ रहा है, स्मूथ है थोड़ा, ठीक है. और यहाँ लॉसेस भी देखो, ये भी एक कंपेरेटिव आ गया, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें, धीरे धीरे नीचे आते आते. आई थिंक मैं नंबर ऑफ ईपोज भी कम कर दूं, इसको 20 करने की भी जरूरत नहीं है, ईपो भी कम कर दो, बैच साइज भी कम कर दो, आप तो 4 कर दो, कोई इशू नहीं. फिर चेंज मिलेगा आपको रिजल्ट के अंदर. आप देखना चाहते हो तो मैं बताता हूं. देखो, मॉडल सिक्वेंशियल डेंस डेंस, ठीक है, कर दिया, कंपाइल करा, कंपाइल करा, समरी प्रिंट करी. एक काम करता हूं, ईपो भी 10 कर देता हूं, और बैच साइज और छोटी कर देता हूं. ठीक है, अब रन करो. ठीक है, हो गया. लेट मी टेक द प्रेडिक्शन. ठीक है, अब देखो, ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98, टेस्टिंग एक्यूरेसी 97. वाह भाई, कंपेरेबल आ गई. तो ट्रेनिंग 98, टेस्टिंग 97, तो हो गई ना, बराबर की बात हो गई. मैं ये तो चाहता हूं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ज्यादा अंतर ना रहे, तभी तो मेरा मॉडल ओवरफिटिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा. ठीक है, ये करा, ये करा. अब देखो, अब देखो, ठीक है, अगेन ट्रेनिंग इंक्रीज हो रहा है, वैलिडेशन भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ ट्रेनिंग कम हो रहा है, वैलिडेशन भी कम हो रहा है, साथ साथ कंपेरेटिव है. ये भी एक अच्छा आर्किटेक्चर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी, यस सर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. Okay, so that's what I'm telling you, that you can change the architecture from your side and you understand what is the scenario. Fine, तो ये काम हुआ. I'll share the codes again.
Okay, and you have to practice. Just you're learning this architecture development from the basics. Okay, so you should try on your data, whatever you know from your side. You can try from your end also. You can change the data set, take any other data set. ठीक है, तो ये मुझे कोड के बारे में बताना था. अब चलो नया काम करते हैं, समथिंग न्यू. हटाओ इसे. ठीक है, एंड लेट मी मेक अ न्यू शीट. अब सर कोड वोड तो बता दिया आपने. एंड सर ये तो जो चल रहा है वो तो ऑटोमेटिकली अंदर जो चल रहा है सर, वो हमें दिखेगा तो है नहीं. वो क्या मैथ्स हुई वो तो हमें दिखी नहीं. हाँ, समझ में आ गया कि आप लाइब्रेरी लेते हो. यू डू टेक द लाइब्रेरी, यू लोड द डेटा, एंड देन यू divide your data into training testing. Sir, you scale your data, and sir, you make an architecture, you compile, you print the summary, and you train your data. ये आपने कर लिया, और आपने मॉडल को इवेल्युएट भी कर लिया, और प्लॉट भी बना दिया. तो ये तो हो गया सब. ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कोड का. हम भी यही करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, हम भी आर्किटेक्चर बनाएंगे. लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि अंदर पीछे गणित क्या हो रही है? व्हाट इज द मैथ्स हैपनिंग? ये बड़ा खास मुद्दा है. व्हाट इज हैपनिंग बिसाइड द सीन? तो पीछे क्या चल रहा है इसको पता करते हैं, और सबसे छोटी जो बात है उस पर आते हैं, मतलब बहुत बहुत इजी वे में. तो भाई आपके पास लेट अस सपोज कि एक न्यूरॉन है, वन न्यूरॉन यू आर हैविंग. ओके, यू आर हैविंग वन इनपुट. इनपुट है, वेट के साथ आएगा और न्यूरॉन को दिया जाएगा, बायस भी होगा. लेट अस सपोज कि जो आउटपुट है आपको चाहिए वो है वन, या आपको आउटपुट वन चाहिए. ये एक्चुअल है, आपको वन चाहिए आउटपुट. ठीक है, ये एक्चुअल है. दैट मीन्स आपके पास डेटा सेट ऐसा है. दिस इज योर डेटा सेट. इन योर डेटा सेट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. आपको दिया गया कि यदि मैंने इनपुट करा 0.5 तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 1. दिस इज योर डेटा सेट. तो इतने छोटे डेटा सेट पर काम करने के लिए आपने एक न्यूरॉन का न्यूरल नेटवर्क बना दिया. नेटवर्क तो क्या, एक ही न्यूरॉन है वो. ओके, तो आप एक्स एज एन इनपुट दोगे न्यूरॉन को, और हम चाह रहे हैं कि वन आउटपुट है. हाँ, वेट आपने ले लिया 0.1. ओके, बायस ले लिया आपने 0.1. वेट को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 0.2 कर देता हूं. लेट अस चेंज द वेट. लेट अस सपोज वेट है 0.2, वेट इज 0.2, बायस इज 0.1. एक्टिवेशन फंक्शन जो है आप ले रहे हो सिग्मोइड. ये ले रहे हो आप एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि होता है 1/1 प्लस ई की पावर -6. तो आप ये जानते हो यहां पर मैथ्स क्या होगी? व्हाट इज द मैथ्स? मैथ्स होगी y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी. ये होगी. तो आपका x है 0.5. ठीक है, 0.5. w है 0.2, बायस है 0.1. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आएगी. कितनी आ रही है? 0.2 इंटू 0.5. हाउ मच इट इज? इट इज 0.10, isn't it? यही होगा. एंड प्लस 0.1 ये भी करोगे आप, ये 0.1 ये भी है ना. तो 0.1 प्लस 0.1 इट विल बी 0.2. सो आउटपुट y इज कमिंग एज 0.2. ठीक है,
तो न्यूरॉन से क्या आएगा? 0.2। लेकिन आप ये जानते हैं भाई, फाइनल आउटपुट के लिए मुझे उसे एक्टिवेशन फंक्शन से भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है 0.2, इट विल बी केप्ट इनटू एक्टिवेशन फंक्शन 1/1 प्लस ई की पावर -x, यानी -y। ये y रखो इसको। ठीक है, तो 1/1 प्लस ई की पावर -0.2, ये हुआ। सो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आता है। व्हाट इज ई? द वैल्यू ऑफ ई इज 2.71। आई थिंक ई की वैल्यू यही होती है एक्सपोनेंशियल की, 2.71 होती है। ओके, ई की वैल्यू। सो व्हाट आई नीड टू डू हियर इज, क्या कैलकुलेशन करना है मुझे? 1/1 प्लस 2.71 की पावर में -0.2, ये करना है मेरे को। तो ठीक है, इट विल बी लाइक 1/1 प्लस 1/2.71 की पावर 0.2, ये करना है मुझे। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आ रहा हो, ओके, इसका जो भी आंसर आ रहा हो, यानी कि 2.71 टू द पावर 2, देखते हैं मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर है, वो पावर निकाल लेगा क्या? कैलकुलेटर में देखते हैं। ओके, सो 2.71 देखते हैं हियर, 2.71 यहाँ पावर हो सकता है क्या? डू यू नो अबाउट दिस थिंग कि पावर हो सकता है? यदि करूंगा तो स्क्वायर निकल जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 0.2 चाहिए उसके ऊपर। ओके, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए? 2.71 टू द पावर। Sir, there is scientific is there, sir. I हाँ, think साइंटिफिक जो कैलकुलेटर मुझे चाहिए standard एक्चुअल। जो बाजू में सर, just देखिए ओके, sir. तो डजेंट मैटर, 2.71 पावर 0.2। ओके, सो द आंसर विल बी, मैं देख लेता हूँ, शायद मुझे इससे मिल जाए। टू द पावर 0.2 करना है ना, ऐसे मुझे देखना पड़ेगा सही कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, उससे क्लियर होगा। तो जो भी आंसर आएगा, यू हैव टू डिवाइड 1 बाय दैट। ओके, एंड देन वॉट एवर बी द फाइनल आंसर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, वो आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, एंड दैट फाइनल आंसर यू हैव टू कंपेयर विद योर एक्चुअल। एक्चुअल आपका 1 था। ठीक है, एक्चुअल जो आउटपुट है वो आपका 1 था। दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड इन द डेटा सेट। एक्चुअल 1 है। प्रिडिक्टेड, ये जो आया है ना, ये प्रिडिक्टेड आया है, मॉडल ने ये प्रिडिक्शन करके दिया है। ये जो आंसर है, मॉडल ने प्रिडिक्शन करके दिया। ठीक है, तो भाई यदि 1 नहीं आया आपका, तो लॉस कैलकुलेट होंगे फिर। ओके, लॉसेस विल बी कैलकुलेटेड, और लॉस कैलकुलेट होगा तो उसके बाद बैक ट्रैकिंग होगी। बैक ट्रैकिंग में क्या होगा? मुझे वेट अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लॉस, पहले आएगा लॉस। तो लॉस, जैसे कि हमने कहा, लेट अस सपोज yp माइनस ya का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज का रूट, ये होता है लॉस या एरर की बात करें अपन। तो अभी अभी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। लेट अस सपोज कि शायद आपने ये कैलकुलेशन करा एंड यू गॉट द वैल्यू एज 0.8, ये आई आपकी, देन मॉडल ने 0.8 प्रिडिक्ट करा, तो आपको ये लॉस निकालना पड़ेगा। देन 0.8 माइनस 1, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड कितना है? 0.8, एक्चुअल कितना है? 1, तो 0.8 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो अभी तो एक ही पॉइंट है, तो n इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो वट एवर बी द वैल्यू यू विल गेट, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉस। और ये लॉस आ गया।
अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन जो यूज करना है वो है ये W डैश इज इक्वल टू W माइनस अल्फा डेल L बाय डेल W। यानी आपको नया वेट निकालना पड़ेगा, वेट एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इनिशियल वेट जो न्यूरॉन को दिया गया था वो था 0.2, ठीक है, आप देख लीजिए 0.2 वॉज द वेट विच वॉज गिवन टू द न्यूरॉन इनिशियली, ओके, 0.2 देकर चले थे। लेकिन मैंने जब 0.2 का यूज करा तो मेरे को प्रिडिक्शन मिला 0.8, जो कि सही नहीं है। मैं चाहता हूं और बेटर प्रिडिक्शन मुझे मिले, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, आपने लॉस निकाला, लॉस निकालने के बाद, ठीक है, लॉस निकालने के बाद आपको वेट अपडेट करने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, W डैश इक्वल टू W माइनस अल्फा डेल L बाय डेल W, ओके। और L कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? लॉस अभी मान के चलो यार, वो अंडर रूट भी मेरे को इशू करेगा, लेट अस सपोज ये लॉस है yp माइनस वाई ए का होल स्क्वायर बाय 2, ये लॉस है, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू W। लॉस को मुझे विद रिस्पेक्ट टू W डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डेल L बाय डेल W ये निकालना पड़ेगा, दैट इज आई नीड टू डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डेल L बाय डेल W करूंगा तो ये 2 बाहर आ गया, ये 2 इधर आया, yp माइनस वाई ए, ठीक है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर डॉट, अब अपन अंदर जाएंगे, इसका अंदर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो अंदर जब डिफरेंशिएशन होगा तो आपको y की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी कि y क्या था। तो एक्चुअल जो y था वो था wx प्लस बी, वो था y। तो यहां yp तो छोड़ो, इसका कुछ नहीं है, ya है wx प्लस बी, तो yp ऐसे रहने दो, माइनस यहां रखो wx प्लस बी, ये होगा ya, ठीक है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद अंदर जाके इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू W, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आपको डेल L बाय W मिलेगा, डेल L बाय डेल W मिलेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू पुट इट हियर इन द इक्वेशन। Learning rate, you will take some value, that is for example 0.1. Learning rate is the step size, that also I have explained previously, and this is the old weight। तो old weight 0.2 है, माइनस लेटर सपोज यहां पर जो भी आपने कैलकुलेशन करा आया 0.15, तो नया वेट आया 0.5, मान लो 0.05, ये नया वेट आया। अब इससे वापस से मॉडल को ट्रेन करना, तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई है ना वेट एडजस्टमेंट वाली, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग का मतलब ही ये होता है कि वेट्स को एडजस्ट करना। तो ये वाला मैथ तो बड़ा आसान है, ये फीड फॉरवर्ड वाला, ये जो तुमने करा ना, ये WX प्लस बी, ये वाला फीड फॉरवर्ड वाला बड़ा आसान मैथ है। बैक ट्रैकिंग कठिन है, बैक ट्रैकिंग इज टफ, जहां पर आपको वेट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सीखेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अबाउट द बैक ट्रैकिंग, ठीक है। बड़ा न्यूमेरिकली करना है, वो है मेरे हाथ में, ये रहा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। सो हो सकता है मुझे पूरी क्लास भी लग जाए बताने में, सिर्फ इसी का मैथ्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हैपनिंग बिसाइड ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने एक न्यूरॉन लेकर बताया, ठीक है, कि ऐसा ऐसी कहानी चल रही है। अब यहां पर आई एम गोइंग टू टेक 2 layers and 3 neuron, then we'll check how the feed forward and backtracking is going on। और ये मेरा डेटा है, ये भी छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन क्या है, बैक ट्रैकिंग में मजा आ जाता है, ठीक है। तो वो सीखना है, तब जाके अपनी बात थोड़ी बन पाएगी। सर, हाँ या तो जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है एंड हाँ देन वी डू dy बाय dx, तो 6x आता है, हाँ मतलब हाँ x का हाँ कंपोनेंट है उसमें, हाँ बट हमारे लॉस में x का मतलब w कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ, देखिए डब्ल्यू का कंपोनेंट लॉस के अंदर कहाँ बोल रहे हैं आप, यहाँ पर कहाँ बोला आपने, ये तो लॉस है ना, yp माइनस वाई ए बाय 2, ये मेरा लॉस है, ठीक है। बट ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा ना सर। एक वैल्यू आएगी ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, विल गेट अ न्यूमेरिकल तो वैल्यू let's say- ओनली। और x नहीं है ना, तो सर x डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, वो खेल ही खत्म उसका फिर।
या सॉरी, अभी डिफरेंशिएशन का उसके साथ W है ना, तो डिफरेंशिएशन तो W का होगा, X तो बाहर रहेगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। आप समझे? यदि मैं WX प्लस B को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू W, तो यहाँ X एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू W 1 हो जाएगा एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ B विल बी 0, वो 0 हो जाएगा। तो यू विल ओनली गेट X, वो कांस्टेंट है। और X की वैल्यू क्या है? यू Yes. वेल नो दैट इज 0.2 है शायद, ठीक है। जो भी वैल्यू है X की 0.2 0.5 जो भी है वो पुटअप करें, ये चीज रहेगी। सो मैथ्स ही है जो खास समझनी है। कोड तो बता दिया मैंने, बट इसको थोड़ा सा आराम से धैर्यपूर्वक न्यूरॉन बाय न्यूरॉन समझाऊंगा। अभी तो एक ही न्यूरॉन लेकर समझाया है, इट्स एक इनिशियल है ये, इसको फिर वापस से रिपीट करूंगा इन टुमारो क्लास। ऑलराइट, सो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा इस चीज को लेकर। ओके, सो फाइन। Sir, please share today's हाँ हाँ, notebook today only, sir.